Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anagha, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about the most important and the new release of Tally Prime, that is 3.0. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations, and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 CRM, and Skill India. So now moving ahead with the today's topic, the speakers are here. The presentation will be done by Ms. Pinaj. So Pinaj, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the live demonstration will be done by Mr. Aniket. So Aniket, are you here? Yes, ma'am. I am here. Okay, and the resource person, Mr. Bhagwati Dhandaria. Sir, are you here? Hearty welcome all of you. So now I request Pinaj and Aniket to move ahead with your presentations. Hello. Good evening, all. Myself, Pinash Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited, on behalf of the management and the entire team of Rajlakshmi Solutions. I would like to welcome all the participants present here. So, moving ahead to our today's topic is Tally Prime Release 3.0. Multiple GST registration in a single company. Multiple GST registration in a single company data brings in a simpler GST return filing experience, as you can file GST return for each GST registration separately using GST report of a single company data. It saves you from the trouble of maintaining different company data for different GST registrations. This in turn save a great deal of time, as you can work to prepare for GST return of each GST transaction रजिस्ट्रेशन इन अ सिंगल कंपनी डेटा. एक ही कंपनी के डेटा में कई जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक सिंपलर और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप एक कंपनी के डेटा की जीएसटी रिपोर्ट का यूज करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ये आपको डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट कंपनी डेटा बनाए रखने की डिफिकल्टी से बचाता है. Reconcile transaction in GST R1, GST R2A and GST R2B. The experience of reconciling your transaction in GST R1, GST R2A and GST R2B with the transaction of your supplier has become further simpler. This ensures that the information in your books match that on the GST portal. Moreover, the facility to identify potential match to unreconciled transaction in your books add to the easy of the reconciliation process. जीएसटी रिपोर्ट में अपने ट्रांजैक्शन को अपने सप्लायर के ट्रांजैक्शंस रिकंसाइल का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस और भी इजी हो गया है. ये इंश्योर करता है कि आपकी बुक्स की इंफॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन से मैच हो. आपकी बुक्स में अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शन के लिए पोटेंशियल मैच की आइडेंटिफाई करने की फैसिलिटी रिकंसिलिएशन प्रोसेस को इजी बनाती है. पेमेंट रिक्वेस्ट. Tally Prime now come with the payment request feature that will help you generate and share payment link and QR code using payment gateway or UPI. This will also empower your parties to settle the payment with you instantly and conveniently. Tally Prime अब पेमेंट रिक्वेस्ट फीचर के साथ आया है, जो आपको पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड पेमेंट गेटवे या यूपीआई का यूज करके जनरेट और शेयर करने में हेल्प करेगा. यह आपकी पार्टियों को आपके साथ इंस्टेंट और इजीली पेमेंट सेटल करने के लिए भी हेल्प करेगा. इंस्टेंट पेमेंट रिक्वेस्ट. Once you have completed your setup, Tally Prime will help you instantly generate and send payment link and QR code
all in the flow of your regular business. एक बार जब आप अपना सेटअप पूरा कर लेते हैं तो टेलीप्राइम आपको इंस्टेंट पेमेंट लिंक और QR कोड जनरेट करने और सेंड करने में हेल्प करेगा. Now it's time for the live demonstration. I request Aniket Sam to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Thank you, Pinal Madam. That was a nice presentation from your side. Hello everyone. My name is Aniket Chavan, presenting from Raj Lakshmi Solution Private Limited. So आज हम देखने वाले हैं टैली का जो न्यू रिलीज आया टैली प्राइम 3.0, उसमें जो न्यू फीचर्स आए टैली के, उसका हम ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे हम देखने वाले टैली में कैसा हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसका बेनिफिट हमें उठाना चाहिए. तो सबसे पहला फीचर हम यहाँ पे टैली में देखते हैं. फर्स्ट फीचर इज पेमेंट रिक्वेस्ट फीचर. तो सबसे पहले उसको हमें इनेबल करना पड़ेगा. जैसे हम ये मेरा टैली का 3.0 रिलीज यहाँ पे अपडेट यहाँ पे मैंने कर लिया है. बहुत यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैली प्राइम 3.0. इसमें हमें सबसे पहला फीचर है पेमेंट रिक्वेस्ट फीचर का. उसको हम सबसे पहले टैली में एक्टिवेट करना पड़ेगा यूज करने के लिए. तो सबसे पहले उसको एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे F11 क्लिक करना है. यहाँ पे हमें एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा टैली प्राइम 3.0 में, इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक एंड QR कोड. इसे हमें इनेबल करके रखना है. जैसे हम इसे इनेबल करते हैं तो जितने हमारी कंपनी के अवेलेबल पेमेंट मेथड है, जैसे कि UPI हो गया, रिजर्व पे, पेटीएम, पेयू, तो ऐसे 4 पेमेंट मेथड पेमेंट गेटवे के ऑप्शन टैली में प्रोवाइड किए गए अभी फिलहाल के लिए. तो मैंने यहाँ पे अभी पेयू एंड रिजर्व पे एंड UPI का यहाँ पे मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ. रिजर्व पे का यहाँ पे पेमेंट गेटवे नेम यहाँ पे हमें फिल करना है. नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलता है. तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन टैली में दिए गए हैं. अगर आपका पेटीएम लिंक करना चाहते हैं तो पेटीएम हमें सेलेक्ट करना है. अभी हम रिजर्व पे हम लिंक करना चाहते हैं. यहाँ पे ओवरऑल डिटेल हमें रिजर्व पे की फिल करनी है. यहाँ पे हमें मर्चेंट आईडी दिया जाता है. रिजर्व पे जो आईडी रहता है वहाँ पे वो लिंक वहाँ पे मर्चेंट आईडी रहता है, तो वो आईडी हमें यहाँ पे डालना है. नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी, जो हमारा रिजर्व पे का ये प्रोफाइल, वहाँ पे जो ईमेल आईडी लिंक रहेंगी रजिस्टर ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है पेमेंट लिंक एक्सपायर सीन, मतलब जो लिंक हम कस्टमर्स को, पार्टी को बिल के साथ शेयर करना चाह रहे हैं या फिर जो QR कोड, उसका हमें एक्सपायरी डेट अगर सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं. यहाँ पे 365 डेज, 180 डेज भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं. लेकिन अगर आपको ये सेंड एक्सपायर करना डेज नहीं डालने हैं तो यहाँ पे जस्ट F12 में एक ऑप्शन दिया गया है सेट पेमेंट लिंक एक्सपायरी. तो इसे हम यहाँ पे नो करके रखते हैं बस, और इसको हमें यहाँ पे सेव कर देना है. सेम UPI का हमें यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना है. UPI में बस हमें UPI ID डालना पड़ता है और मर्चेंट नेम डालना पड़ता है. तो ये हमारा प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है. ये प्रॉपरली क्रिएट हमें करने के लिए कर देने के बाद हम इजीली पेमेंट लिंक एंड QR कोड जनरेट कर सकते हैं. एंड इसको हमें सेव कर देना है. जैसे हम इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे जब हम वाउचर क्रिएट करते हैं या फिर जो हमारे वाउचर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उसका हम QR कोड लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम जिसका जो इनवॉइस जनरेटेड है ऑलरेडी मेरे डेबुक में, उसका लिंक जनरेट करके देखते हैं. तो सबसे पहले ये इनवॉइस हम यहाँ पे दिख रहा है सेल इनवॉइस, इसका हमें लिंक एंड QR कोड जनरेट करना है. तो इसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहले इंडिविजुअल इनवॉइस हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो ये इनवॉइस मैंने ओपन किया. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर अमाउंट का यहाँ पे इस पार्टी को लिंक एंड QR कोड हमें पेमेंट का शेयर कर देना है. तो उसके लिए हमें एक्सचेंज में जाना है. Alt Z हम यहाँ पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जनरेट पेमेंट लिंक ऑब्लिक QR कोड. यहाँ पे क्लिक करना है. यहाँ पे हम करंट पे क्लिक करेंगे. करंट पे क्लिक करने के बाद हम इसको जो पेमेंट लिंक एंड QR कोड दे रहे हैं वो UPI का देना चाहते हैं या फिर रिजर्व पे का देना चाहते हैं या फिर पेयू का देना चाहते हैं,
या फिर पेटीएम का देना चाहिए। जो हमने प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करके रखी है वो सभी प्रोफाइल हम यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टिंग में। तो जस्ट हमें प्रोफाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जो प्रोफाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके डिटेल के साथ एक लिंक एंड क्यूआर कोड जनरेट होगा, वही प्रिंट पे हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अभी रिजर्व पे सेलेक्ट कर लेते हैं। रिजर्व पे सेलेक्ट जैसे हम करते हैं तो रिजर्व पे का जो लिंक जनरेट होता है वो लिंक डायरेक्टली हम टैली में से कस्टमर को ईमेल एंड एसएमएस भी कर सकते हैं। अगर हमें ओनली एसएमएस करना तो जस्ट यहाँ पे एसएमएस सेलेक्ट कर देना। अगर ओनली ईमेल करना तो यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर देना। अगर दोनों हम यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल एंड एसएमएस यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालना है हमें। मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ईमेल आईडी में मेरा यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड इसको अमाउंट को हम यहाँ पे अल्टर भी कर सकते हैं। जैसे किसी कस्टमर को अगर हाफ पेमेंट करना है, पार्ट पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फुल अमाउंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो पेमेंट करते समय भी वहाँ पे उसको पार्ट पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे कस्टमर को दिख जाएगा। वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंटर करेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये इसका लिंक एंड क्यूआर कोड जनरेट होगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है पेमेंट लिंक इज जनरेटेड सक्सेसफुली। सो इस इनवॉइस का पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड रिजर्व पे का हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। वो हमें कैसे देखना है, सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं, करंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू में देखेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेमेंट का लिंक है एंड ये क्यूआर कोड भी स्कैन करके हमें पेमेंट क्लाइंट हमें पेमेंट कर सकते हैं। सो एंड कस्टमर को ईमेल एंड एसएमएस भी जो जाता है उसका कहीं पे भी टैली एसएमएस चार्जेस चार्ज नहीं करता है। अगर इन फ्यूचर कभी चार्ज आपको लगता भी है तो वो पेमेंट गेटवे से आपको चार्ज लगेगा। टैली कहीं पे भी इसमें चार्ज नहीं करता है एसएमएस चार्जेस। एंड सेकंड थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे ईमेल मैंने मेरा ईमेल आईडी भी वहाँ पे पुट किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे राजलक्ष्मी यहाँ पे ईमेल भी आया 4814 जो अमाउंट वहाँ पे मैंने किया था इस अमाउंट का मुझे यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जैसे हम प्रोसीड टू पे। सॉरी टू से अनिकेत, आपका ईमेल का स्क्रीन शेयर नहीं है। यस, एक मिनट सर। यस, नाउ इट्स विजिबल। अभी दिख रहा है सर? हाँ, अब आप एक्सप्लेन कीजिए ईमेल वाला जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मुझे एक फ्रेश मेल यहाँ पे अभी आया है एंड मुझे एसएमएस भी यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे ईमेल का यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे हमें पेमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमें ईमेल ओपन करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोसीड टू पे। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी कस्टमर को ऑप्शन मिलता है कि फुल पेमेंट करना है या फिर पार्ट पेमेंट करना है। तो पार्ट पेमेंट भी कस्टमर हमें यहाँ पे कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर डालना है यहाँ पे एंड ईमेल आईडी ऑप्शनल रहेगा, वो डाल भी सकते हैं यहाँ पे क्लाइंट। अगर वो पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे पार्ट पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड अमाउंट कस्टमर को डालनी है। जैसे वो अमाउंट डालेंगे इसको कंटिन्यू कर लेंगे और आगे वो पेमेंट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जितने भी रिजर्व पे के यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं तो वो सभी से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा आगे आप प्रोसीड करके दिखा दीजिए फुल पेमेंट पर। यस, यहाँ पे फुल इन पे इन फुल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डालते हैं। कंटिन्यू कर लेते हैं आपको। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो जस्ट जो भी आपका सुटेबल पेमेंट मेथड रहेगा जस्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं फोन पे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे यूपीआई आईडी आप डाल सकते हैं या फिर क्यूआर कोड भी स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं सिंपली। एंड जस्ट यहाँ पे पे नाउ करना है। आपका पेमेंट यहाँ यही से क्लाइंट आपको कर सकते हैं डायरेक्टली।
नेक्स्ट ये हो गया इंडिविजुअल वाउचर का पेमेंट लिंक जनरेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट हम आते हैं बल्क में, मतलब मल्टीपल वाउचर्स का अगर हम पेमेंट लिंक क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल, जो हमारे सेल बिल है, सेल बिल का हम यहाँ पे रजिस्टर ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल बिल है, जनवरी मंथ के यहाँ पे सेल बिल में ओपन कर लेता हूँ। इसका वन टाइम अगर किसी मल्टीपल बिल के हमें पेमेंट लिंक क्यूआर कोड जनरेट करने, तो जस्ट हमें वो बिल सेलेक्ट यहाँ पे कर लेने। यहाँ पे जैसे स्पेस बार देकर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑल सेलेक्ट करना है, ऑल बिल का भी हम यहाँ पे पेमेंट लिंक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अल्ट जेड क्लिक करना है। सेम यहाँ पे जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड का ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे करंट पे क्लिक करना है। सो जैसे हम करंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी बिल हमने सेलेक्ट किए उस पार्टी के नाम आएंगे। उस पार्टी के नाम के सामने उस पार्टी का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ताकि वो पार्टी को ईमेल एंड एसएमएस दोनों पे हमारा पेमेंट लिंक मिल जाएगा, सेंड हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। यहीं पे यहाँ पर भी हम यूपीआई एंड रेजर पे अलग अलग ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यूपीआई सेलेक्ट करेंगे तो यूपीआई का क्यूआर कोड जनरेट होगा एंड रेजर पे सेलेक्ट करेंगे तो रेजर पे का क्यूआर कोड लिंक दोनों जनरेट होगा और वो ईमेल एसएमएस भी चला जाएगा। यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे यूपीआई का कोई ईमेल एसएमएस यहाँ से सेंड करने का ऑप्शन नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन रेजर पे का लिंक एंड क्यूआर कोड शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी का हम यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शेयर डाल देते हैं। मैं सेम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सेम दूसरी पार्टी को भी सेम नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ये हम अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक हम पुट करके हम चेक कर लेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सभी का यहाँ पे अमाउंट, बिल का जो अमाउंट था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है। इसको हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डू यू वांट टू सेव पेमेंट लिंक इन द सिलेक्टेड वाउचर, इसको हम यस कर लेते हैं। तो चारों इनवॉइसेस का हमारे यहाँ पे पेमेंट लिंक जनरेट हो रहा है। यहाँ पे स्टेटस हमें दिख रहा है सक्सेस, मतलब चारों इनवॉइसेस का जो पेमेंट लिंक हम जनरेट कर रहे थे वो सक्सेसफुली हो गया है। अभी हम देखेंगे इनवॉइस ओपन करके। यहाँ पे अल्ट पी करेंगे, करंट पे क्लिक करेंगे एंड इसको प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पे इसका क्यूआर कोड लिंक यहाँ पे आ गया है। लेकिन इसमें अगर आपको देखना है कि कौन से इनवॉइसेस का हमने क्यूआर कोड लिंक जनरेट किया था, कौन से इनवॉइसेस का नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे आपको रजिस्टर में यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए यहाँ पे टैली में एक ऑप्शन दिया गया है, कॉन्फ़िगर में हमें यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यू में हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है नया, स्टेटस ऑफ वाउचर। जैसे हम इसको एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है विथ एंड विदाउट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड। ये जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जितने हमने पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड जनरेट किए हैं और जितने नहीं जनरेट नहीं किए हैं वो दोनों ऑप्शन हम यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन सेकंड ऑप्शन में ओनली अगर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड जिनका हमने जनरेट किया है वही वाउचर अगर आपको देखने हैं तो वो हमें उस समय हमें सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 4 वाउचर का हमने जनरेट किया था, ये 4 वाउचर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यही से हमें समझ में आ जाता है कि जितने पेंडिंग है वो पेंडिंग वाउचर्स कितने हैं, या फिर जितने जनरेट किए थे वो कितने हैं। अभी हमें पेंडिंग वाउचर देखना है जिनका जनरेट करना बाकी है। तो यहाँ पे विदाउट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो ये 4 वहाँ पे नहीं दिखेंगे, बाकी सब वहाँ पे हमें शो कर रहे हैं। ये सब यहाँ पे जो दिख रहा है इन सभी का कहीं पे पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है, या जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हो गया बल्क वाउचर, बल्क मतलब मल्टीपल वाउचर का क्यूआर कोड लिंक जनरेशन का प्रोसेस।
नेक्स्ट क्यूआर कोड लिंक जनरेशन का और एक प्रोसेस होता है टैली में जो दिया गया है। जैसे हम वाउचर सेव करेंगे तो उसी समय सेव करने के बाद उसका क्यूआर कोड जनरेट अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टैली में ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हम उसके लिए अल्टर में जाना है। जो वाउचर टाइप है हमारा, जिसका सेल्स में हम जनरेट करना चाहते हैं, तो उस वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है पेमेंट लिंक का ही, जनरेट पेमेंट लिंक ऑब्लिक क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। तो इसको हमें यस कर देना है और इसे सेव कर देना। इसके बाद हम वाउचर्स में जाते हैं। यहाँ पे सेल बिल हम बुक करेंगे। एक डमी बिल हम यहाँ पे बुक कर रहे हैं अभी। जस्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 100 क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे लेते हैं CGST एंड नेक्स्ट आएंगे SGST। ये सब डिटेल हम यहाँ पे प्रॉपर डालेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड। हम यहाँ पे यस करेंगे। अब हम पेमेंट लिंक क्यूआर कोड रेजर पे का जनरेट करना चाहते हैं, यूपीआई का जनरेट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रेजर पे का हमने प्रोसेस देख लिया। अब हम यूपीआई का यहाँ पे चेक करते हैं। यूपीआई हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको सेव कर लेंगे। सो यूपीआई का क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेटेड हो गया है। अभी उस बिल का जिसका हमने जनरेट किया था, सो दिस इज अ बिल जिसका हमने यूपीआई क्यूआर कोड जनरेट किया था। अभी यहाँ पे अल्ट पे करेंगे, करंट पे क्लिक करेंगे एंड प्रीव्यू करेंगे इसको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीआई का यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। तो डायरेक्टली इसको स्कैन करके भी क्लाइंट आपको पेमेंट कर सकता है। So this is overall idea about payment link, payment request option in TallyPrime 3.0. Next यहाँ पे फीचर मैम स्क्रीन Okay. ओके, मैं स्क्रीन विजिबल मैम? Yeah, it's visible now. Yes. I'm resuming my session where we'll okay. So पेमेंट लिंक का जो हम प्रोसेस देख रहे थे, उसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर अभी और एक यहाँ पे TallyPrime 3.0 में आया है, मल्टी स्टेट जीएसटी का। सो मल्टी स्टेट जीएसटी इट्स मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जैसे मेन ब्रांच का इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में उसके मेन हेड ऑफिस के अलग अलग ब्रांचेस है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। तो जैसे बहुत से क्लाइंट यहाँ पे अलग अलग कंपनी अलग अलग स्टेट्स के लिए मेंटेन कर रहे थे अभी तक तो, लेकिन अभी TallyPrime में एक ही कंपनी के अंदर आप मल्टीपल जीएसटी मल्टीपल स्टेट के आप जितने भी हम अपने ब्रांच है कंपनी के, वो सब हम एक ही कंपनी में मेंटेन कर सकते हैं विथ यूजिंग मल्टी जीएसटी ऑप्शन। तो मल्टी जीएसटी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे F11 क्लिक करेंगे, जिसमें हम हमारे जितने भी स्टेट है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सके। जैसे जीएसटी में यहाँ पे ऑप्शन मिलता था हमें, इसमें हम एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, एक ही जीएसटी नंबर वहाँ पे फिल कर सकते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेट का जीएसटी नंबर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे करा हुआ है दिल्ली रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन एंड ये तेलंगाना रजिस्ट्रेशन। सो हम यहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं। जो हमारा दिल्ली रजिस्ट्रेशन का है, यहाँ पे जस्ट जैसे हमारे ओल्ड इसमें था टैली में, स्टेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करना सबसे पहले, रजिस्ट्रेशन टाइप उस स्टेट का यहाँ पे रेगुलर एंड जीएसटी नंबर वहाँ का डालना है दिल्ली का, दिल्ली स्टेट का। यहाँ पे पेरियोडिकल सिटी ऑफ GSTR 1, इसका मंथली क्वार्टरली हम यहाँ पे GSTR 1 फाइलिंग का सेलेक्ट करेंगे। एंड उस स्टेट में इस कंपनी में उस स्टेट में ई इनवॉइस अगर एप्लीकेबल होगा तो वो ऑप्शन में हम यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर या फिर जिस स्टेट में नहीं है वहाँ पे हम इसको नो भी रख सकते हैं।
एंड इसको हम ईवी बिल का भी हमें यहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, ताकि ईवी बिल, जीएसटी एंड ई इनवॉइस, ये सभी का जो रिपोर्ट हमें टैली में जो मिलता है ये स्टेट मल्टी स्टेट में, वो सब हम स्टेट वाइज हम बाइफरकेट कर सके और स्टेट वाइज हम रिपोर्ट भी देख सकते हैं। सेम हम महाराष्ट्र का भी यहाँ पे देखते हैं। महाराष्ट्र का हम यहाँ पे स्टेट डालेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे और यहाँ पे ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी अगर है तो यहाँ पे यस कर देना है। 1 जन से हम एप्लीकेबल कर रहे हैं। बिल फ्रॉम प्लेस यहाँ पे हम मुंबई डाल देते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कंपनी में ई इनवॉइस हमने यहाँ पे एप्लीकेबल किया, यहाँ पर भी हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हम तेलंगाना का भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके रखा है एंड इसको हमें सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे हम अल्टर में आते हैं। जैसे कि अलग अलग स्टेट वाइज अगर हमें अलग अलग वाउचर टाइप भी बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल वाउचर अलग अलग स्टेट के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर रिपोर्टिंग के लिए प्रॉपर टैली में जो सेल रजिस्टर जनरेट होता है, वो प्रॉपर आपको रिपोर्टिंग दिखने के लिए आप अलग अलग वाउचर भी उसका बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वाउचर टाइप में अल्टर में यहाँ पे वाउचर टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स का अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे वाउचर टाइप बनाया है, लेकिन अगर आप सिंगल मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे इसके लिए हमने अलग अलग बनाया है, क्योंकि जो हमारा रजिस्ट्रेशन डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो वो हम यहाँ पे सेट कर सकें एंड हमारा जो रिपोर्टिंग है वो भी हमें स्टेट वाइज मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं वाउचर में। वाउचर जैसे हम बुक करेंगे तो यहाँ पे ये कॉमन हमारा सेल्स वाउचर है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन हमने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अगर हमारा कॉमन वाउचर है तो हम अगर दिल्ली स्टेट में जीएस ट्रांजेक्शन हम बुक कर रहे हैं तो जस्ट हम यहाँ पे कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। अगर हम दिल्ली का ट्रांजेक्शन बुक कर रहे हैं तो दिल्ली का सिलेक्ट करना है। अगर हम तेलंगाना का ट्रांजेक्शन बुक करें तो तेलंगाना सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन क्योंकि हमने अलग अलग वाउचर टाइप बनाए हैं, तो इसलिए हम दिल्ली का जब वाउचर ट्रांजेक्शन बुक करेंगे तो दिल्ली का हम यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, या फिर जब हम महाराष्ट्र का बुक करेंगे तो महाराष्ट्र का यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे। सो अभी हम यहाँ पे दिल्ली का सेलेक्ट करके चेक यहाँ पे आप वाउचर बुक करके दिखा देता हूँ। सेम हमें बस यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है यहाँ पे ये हमें प्रॉपर सेलेक्ट करना है ताकि हमें रिपोर्टिंग प्रॉपर मिले। बाकी जो एंट्री का जो वर्किंग प्रोसेस है वो एज इट इज हमारा वैसा ही रहने वाला है। पार्टी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे सेल्स रेजर सेलेक्ट करना है, आइटम सेलेक्ट करना है, 50 क्वांटिटी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आएगा इसका आईजीएसटी। दिल्ली का है इसलिए, पार्टी यहाँ पे महाराष्ट्र की है इसलिए यहाँ पे हम आईजीएसटी सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको सेव कर लेते हैं। सेम जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स का बनाया, अलग अलग वाउचर टाइप बनाए, तो वैसे हम बाकी परचेस, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रैक्ट के भी यहाँ पे हम बना सकते हैं अलग अलग, ताकि आपको रिपोर्ट प्रॉपरली बाइफरकेशन स्टेट वाइज देखने को मिल जाए। इसके लिए ले तो या फिर कॉमन अगर यूज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे परचेस का मैंने बनाया दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना का। यहाँ पर भी मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर ये बाय डिफॉल्ट हम सेलेक्ट नहीं करते तो जब हम एंट्री करते उस समय भी आप यहाँ पे एंट्री करते समय वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री में यहाँ पे हम परचेस सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, इसलिए हम दिल्ली का जब सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली दिल्ली का आता है। तेलंगाना का सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली तेलंगाना का आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं F3 करके। सो ओवरऑल वर्किंग प्रोसेस ऑफ मल्टी जीएसटी एंड इसका रिपोर्ट जो आता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, यहाँ पे जीएसटी का रिपोर्ट हम आप सबसे पहले देखेंगे। जीएसटी रिपोर्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे GSTR1 रिपोर्ट।
Sorry. 1 second, please. यस, जीएसटी का रिपोर्ट हम यहाँ पे देख रहे थे, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे। 3B रिपोर्ट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक मिनट। जीएसटी रिपोर्ट यहाँ पे ओपन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जीएसटी का स्टेट वाइज बाइफर्केशन हम देखने के लिए, प्रॉपर्ली देखने के लिए हम यहाँ पे ई इनवॉइस या फिर यूएबल रिपोर्ट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यूएबल रिपोर्ट में हम आते हैं। जितने हमारे वाउचर्स है वो सभी का यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ताकि जब हम रिपोर्ट देखेंगे तो उसका प्रॉपर्ली बाइफर्केशन हम यहाँ पे देख पाएंगे रिपोर्ट में। ये जो अपडेशन का प्रोसेस है, ये वन टाइम प्रोसेस रहेगा। Okay, it's take time while ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में रिकंसिलेशन का हम यहाँ पे पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटी रिकंसिलेशन, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है GSTR 1 रिकंसिलेशन, GSTR 2A रिकंसिलेशन एंड 2B रिकंसिलेशन। जीएसटी टैली प्राइम 3.0 में यहाँ पे GSTR 1, 2A एंड 2B का ऑटो रिकंसिलेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जस्ट हमें रिपोर्ट ओपन करके जितने भी रिकंसाइल ट्रांजेक्शन है एंड अनरिकंसाइल ट्रांजेक्शन है वो हम देख सकते हैं। एंड उस रिकंसिलेशन के लिए जस्ट हमें पोर्टल, वैलिड पोर्टल होना चाहिए, उसे वहां से हम फाइल अपलोड करके हम यहाँ पे डायरेक्टली टैली में रिकंसाइल कर सकते हैं। So that's it from my side. Thank you everyone. Thank you so much, Pinaj and Aniket, for your presentation. So now if anyone have any questions, you can do connect to the your key account manager for any further more details regarding the Tally Prime new release, that is 3.0. So now soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to the social media for the latest updates. Thank you so much for joining the today's session. So now we'll wind up the session. Thank you.